हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू लॉ वाला। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगस्त मंथ में लीगल न्यूज क्या थी, फॉलोड बाय द क्वेश्चंस दैट आर देयर ऑन द पैसेज। तो बहुत ज्यादा टाइम से एक्चुअली न्यूज चल रही है दैट द सेंटर हैज ब्रिंग द बिल्स टू रिप्लेस आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। तो यहाँ पे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इंट्रोड्यूस किया है 3 बिल्स जहां पर रिप्लेस किया जाएगा इंडियन एविडेंस एक्ट को, आईपीसी को एंड सीआरपीसी को बाय द नेम ऑफ भारतीय न्याय संहिता बिल 2023। तो यहाँ पे तीनों बिल्स के अलग अलग नाम हैं और ये बताया गया है कि द मैक्सिमम सेंटेंस फॉर द मॉब लिंचिंग एंड सजेस्ट दैट 10 years imprisonment ग्रांट किया जाएगा इफ एनी ऑफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स हैपेंस विद द विमेन इन द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ द मैरिज। बिल ने यह भी स्टेट किया है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर कोई आदमी करता है विद द ओन वाइफ तो वो मैरिटल रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा अगर विमेन की एज इज नॉट बिलो 18 years। Additionally, Mr. Shah mentioned that property confiscation will only occur under the court orders. Now, understanding the implementations of the bills, during the recent parliamentary session, Mr. Shah presented that the 3 bills that are going to be Bharatiya Nyaya Sanhita Bill, BNS, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita Bill and Bharatiya Sakshay Bill 2023, these bills will actually replace the major acts, that is CRPC Act, Indian Evidence Act and IPC. These are the 3 major criminal law procedure codes actually जिनको replace किया जाएगा, criminal laws को replace किया जाएगा by the 3 bills that are just proposed in the House of Parliament. The main aim behind the changes, तो किस वजह से changes करना चाह रहे हैं यहाँ पे legislation, to actually have the swift justice and to create the legal system जो contemporary modern society के needs से meet करे, जो current standards of the society के हिसाब से meet करे, तो वहां पर इसको aspirations के हिसाब से रखा जाएगा। मिस्टर शाह ने यह भी रिक्वेस्ट किया कि बिल्स को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑफ होम अफेयर्स फॉर द फर्दर कंसिडरेशन भेजा जाएगा। In the cases of sexual violence that are against the women, the video recording of the statement from the survivors has now been made mandatory. तो अब यहाँ पर जिनके साथ भी sexual offenses हुए हैं, तो अगर उस केस में वो लोग वीडियो अपना एविडेंस प्रोवाइड करते हैं तो वो कोर्ट में एडमिसिबल किया जाएगा। The party need not to be present in the court verbally in the physical form. Additionally, marrying or engaging in sexual relations with the woman by decepting, अगर आप किसी women को धोखा देके या उसके साथ wrong credentials share करके अगर शादी करते हैं, that will come in the perspective of rape. मिनिस्टर ने ये भी स्टेट किया कि पुलिस ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करना होगा about the status of complaint to the magistrate within the 90 days period, और इस केस में वो वहां पर ऑफेंसेस में लगेगा जहां पर भी 7 years से ज्यादा की पनिशमेंट है, 7 years और मोर की पनिशमेंट है। पुलिस मस्ट ऑल्सो कंसल्ट द विक्टिम बिफोर डूइंग सो। So in the first community service will be introduced for the specific crimes. Mr. Shah also mentioned one thing, that the maximum limit is going to be 180 days. तो यहाँ पे 90 days से 180 days का ब्रैकेट है जो ऑथर ने बताया है as per the postulations were considered. Police cannot take the indefinite plea as the investigation is ongoing. Now, the police will actually get a 90 days period to file a charge sheet जब भी किसी सस्पेक्ट पे as per CRPC कोई भी सस्पेक्ट होता है तो वहां पे पुलिस के पास एक टाइम होता है जब तक उनको चार्ज शीट फाइल करनी होती है। तो they will get 90 days and another 90 days अगर इस केस में it cannot be exceeded. The government of the day will have to decide on the prosecution sanctions against police officers and civil servants within 120 days or else it will be deemed permitted. Additionally, retired police officers के पास ऐसा कोई भी option नहीं होगा, by that they should be called by the courts to actually record the evidence. तो जितने भी retired police officers होंगे वो लोग VC में भी अपना evidence record कर सकते हैं. They need not to be physically present in the court of law. Instead, Superintendent of Police, that is SOP, who is presently holding the charge, will present the facts. तो यहाँ पर Superintendent of Police का ये role होगा to present the facts before the court after going through the files. ये actually this change is expected to prevent the delays. तो जितने भी backlogs create होते हैं court laws में, तो उनको prevent करने के लिए इस plan को propose किया गया है। वीडियोग्राफी इस केस में अगर यहां पर कोई भी एविडेंस ऐसा कलेक्ट होता है जो सर्च और सीजर के केसेस में वीडियोग्राफी प्रूफ होता है, वहां पर वो कंपल्सरी किया गया है एंड चार्जशीट वोंट बी एक्सेप्टेड विदाउट इट।
Mr. Shah emphasized that the conviction rate is actually presently low and the government aims to take it 90% scenario में. Forensic collection of evidence is now compulsory. तो यहाँ पर जितना भी forensic department वाला काम होगा, that is made actually mandatory for the Evidence Act in compulsory punishable by which are below 7 years or more. Lastly, a police officer will be designated in each of the police station जहां पर भी relatives of the accused, जहां पे जितने भी accused के relatives हैं, that he or she is in the police custody. तो actually ये measure ये बताता है कि हम लोगों को ऐसे cases prevent करने हैं जहां पे suspects को illegal तरीके से पुलिस custody में रखा गया है. तो वहां पर अगर उनकी information online भी provide की जा सकती है, that's a good to go method to actually save the backlog of the police department as well. Mr. Shah also announced that to prevent the individuals with the political clout from taking the advantage of the rules, remission of the sentence has to be there or the death sentence can only be remitted to life imprisonment. तो यहाँ पर जितनी भी leverage मिलेगी, that can be remitted only to the life imprisonment. A life sentence can be remitted अगर जब 7 years and 7 years से ज़्यादा का imprisonment actually waive off किया है up to 3 years. This change will again expect to curb the misuse of the power that is done by the political influence and the political parties. Understanding the questions now. The first question, below are the names of the new and the old acts of the criminal manual. Correspond करना है हमें the correct order में. तो बाय द करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे सबसे पहले क्या न्याय संहिता आया था 2023 में आईपीसी एंड देन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 दैट विल मेक ए बी द एलिमिनेटर. यहाँ पर अगेन जो ईयर यहाँ पे ऑफ द कंटेंशन है दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. बाय दैट नोशन भारतीय न्याय संहिता 2023 इंडियन पीनल कोड दैट इज करेक्ट. साक्ष्य बिल एक्चुअली इंडियन एविडेंस एक्ट को प्रमोट करेगा एंड नागरिक सुरक्षा संहिता विल रिप्लेस सीआरपीसी. जबकि आप ए और बी में देखेंगे तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट्स जो हैं वो गलत हैं. दैट इज वाई क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि नागरिक सुरक्षा बिल एविडेंस एक्ट को बताएगा जो कि एक इनकरेक्ट ऑप्शन है. एंड सो विद द बी वन दैट विल मेक सी द करेक्ट ऑप्शन. डी ने अगेन कहा कि न्याय संहिता बिल जो कि एक्चुअली आईपीसी को रिप्लेस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ने कहा इट विल रिप्लेस सीआरपीसी. दैट विल मेक डी द इनकरेक्ट आंसर चॉइस. What is the purpose? क्या एक्चुअली गवर्नमेंट का पर्पस रहा, क्यों उन्होंने ये न्यू लेजिस्लेशन न्यू बिल्स को अकॉर्ड किया? So what is the main purpose of the government? To create an environment to swift conviction of criminals. तो क्रिमिनल्स को कर्ब करना है, क्रिमिनल्स को नैप करना है, ऐसा ऑथर ने कुछ भी डिस्कस नहीं किया. दैट विल एलिमिनेट दिस ऑप्शन. बी ने कहा कि ऐसा लीगल सिस्टम क्रिएट करना जहां पे कंटेम्पररी सोसाइटी एक्चुअली जो रियल सोसाइटी के नीड्स एंड डिमांड्स हैं, करंट सोसाइटी के नीड्स एंड डिमांड्स हैं, उसके हिसाब से इसको अगर प्रिपेयर करना है दैट विल मेक बी द करेक्ट ऑप्शन. सी ने कहा टू रिप्लेस द ब्रिटिश कोलोनियलिज्म. तो यहाँ पे ब्रिटिश एंड हिस्टोरिकल और आर्कियल मोटिव्स पे कुछ भी पॉइंट डिस्कस नहीं हुआ. दैट्स व्हाई सी एंड डी आर द एलिमिनेटर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग आर और इज आर द नोवल प्यूनिटिव मेजर्स. तो नए तरीके से हम क्या पनिशमेंट अडॉप्ट कर सकते हैं न्यू एक्ट्स के हिसाब से जो कि देखी जाएंगी वेरी फर्स्ट टाइम. तो यहाँ पे पनिशमेंट बाय द वे ऑफ कम्युनिटी सर्विस, यस दैट वाज मेंशन इन द पैसेज, देयरफॉर ए शुड बी द डेफिनेटली करेक्ट ऑप्शन. बी ने कहा पनिशमेंट इस तरीके से फॉर मैरिंग और एंगेजिंग in the sexual relation with a woman by deception or giving the wrong credentials. That was also given in the option choice. It could be the taken the correct option. C ने कहा both A and B. तो yes, that will make C the correct option choice and cannot be concluded is the incorrect one. अमिता ने रजिस्टर किया एक डिफेमेशन कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में. तो कौन से रेगुलेशंस एंड प्रोसीजर्स अप्लाई कर सकती है पुलिस, या पुलिस को क्या मेथड फॉलो करने होंगे इंप्लीमेंट करने के लिए ऐसे नए बिल्स एज पर दी आईपीसी टर्न इनटू द लॉज वाया द प्रेसिडेंट असेंट. तो यहां पर प्रोवाइडिंग द स्टेटस ऑफ कंप्लेंट टू अमृता. कंप्लेंट का स्टेटस ऑथर ने मेंशन नहीं किया. ऑथर का मेन पॉइंट ऑफ कंटेंशन था चार्जशीट को फाइल करना. दैट इज गिवन टू मी इन द ऑप्शन नंबर बी, जिसने कहा चार्जशीट को फाइल करना विद इन 90 days is actually the matter of evidence and matter of investigation on the part of police that they are required to do. That will make charge sheet B option the correct option choice.
सी ने कहा कोर्ट शैल ग्रांट अनदर 90 days इफ द पुलिस डीम नेसेसरी। तो पुलिस को ऐसा लगता है कि नहीं, इफ द पुलिस डीम नेसेसरी, ऐसा कोई ऑप्शन गिवन नहीं है, दैट विल एलिमिनेट सी एंड डी। Which of the following are the incorrect option choices? तो ऑथर यहां आपको बोलना चाहता है कि कौन सा ऑप्शन एक्चुअली फॉल्स है एज पर द क्वेश्चन। मैंडेटिंग द वीडियोग्राफी, मैंडेटिंग नहीं बोला, इन्होंने कहा था कि वीडियोग्राफी विल बी एडमिसिबल, ऐसा नहीं बोला था कि कोई और प्रूफ एडमिसिबल नहीं होगा। तो वीडियोग्राफी को मैंडेट नहीं किया, एडमिसिबल के तौर पे किया गया है पैसेज में, दैट्स व्हाई ए विल बी एलिमिनेटेड। Seeking an increment of 90% in the acquittal rates. Yes, the author wants to say कि जिनके साथ भी injustice हो रहा है वो नहीं होना चाहिए under these acts. That's why the contemporary needs are to be followed. Therefore, B can be the correct option choice also. C ने कहा introduction of the measures to prevent individuals with the political clout from taking the advantage of the rules. ऐसा author ने mention नहीं किया। डी में बोला गया गवर्नमेंट ऑफ द डे विल हैव टू डिसाइड ऑन द प्रोसिक्यूशन सैंक्शंस अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर। तो जितने भी केसेस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट हुए हैं, तो ऐसा ऑथर ने अगेन किसी भी पैराग्राफ में मेंशन नहीं किया, दैट विल क्विकली एलिमिनेट डी ऑप्शन। अंडरस्टैंडिंग अनदर पैराग्राफ, तो ये पैसेज है, पार्लियामेंट ने एक नया बिल पास किया है, रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ एंड बर्थ बिल्स, दैट इज 2023, ताकि गवर्नमेंट के पास एक्यूरेट डेटा हो कि हाउ मच पॉपुलेशन इज एक्चुअली रजिस्टरिंग फॉर द डेथ एंड हाउ मच पॉपुलेशन इज एक्चुअली रजिस्टरिंग फॉर द बर्थ। तो यहां पर गवर्नमेंट ने एक नया बिल इशू किया है 2023 में, जिनका काम था अमेंड करना पुराने बिल को, पुराने एक्ट को, दैट वाज इन 1969। तो इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन का मतलब है कि पर्पस ऑफ द बिल इज एक्चुअली व्हाट, कि क्या एस्टैब्लिश करना है, एक्चुअली एक डेटाबेस एस्टैब्लिश करना है नेशनल एंड स्टेट लेवल पर, जहां पर सारा रजिस्ट्रेशन डेटा इजीली अवेलेबल हो गवर्नमेंट को। इस डेटाबेस को क्रिएट करने से एक्चुअली सारा डेटा अप टू डेट रहेगा, दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट। प्रॉपर डिलीवरी रहेगा पब्लिक सर्विसेज में कि किसको कौन सी सर्विसेज अप्लाई करनी है, लाइक फॉर एग्जांपल राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तो कहां कहां प्रॉपरली डेटा अवेलेबल है वो यूसेज होगा। ऑल्सो द सोशल बेनिफिट्स की किस तरीके से ट्रांसपेरेंटली मेथड्स को अप्लाई किया जाएगा। कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं जो बिल में सीख किए गए हैं, जहां पे बोला गया है कि देयर इज गोइंग टू बी द अपॉइंटमेंट, वन पर्सन इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड, दैट इज रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो इशू करेंगे जनरल डायरेक्शंस कि किस तरीके से बर्थ एंड डेथ्स को रजिस्टर किया जाएगा। तो देयर इज गोइंग टू बी द अपॉइंटमेंट ऑफ वन अथॉरिटी। बिल ने स्टेट किया कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया शुड बी रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए, कि उनको सारा डेटाबेस मैनेज करना होगा अबाउट द बर्थ्स एंड डेथ्स दैट आर रजिस्टर्ड बोथ एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। और ये मैंडेटरी होगा चीफ रजिस्ट्रार के लिए और बाकी रजिस्ट्रार्स के लिए कि वो सारा डेटा शेयर करें ऑन दी ऑनलाइन बेसिस। डेटाबेस को अगर डिफाइन करें एज पर द बिल, तो डेटाबेस का मतलब है ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ ऑल द डेटा दैट इज स्टोर्ड एंड एक्सेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन द कंप्यूटर फॉर्मेट्स। नेशनल डेटाबेस जो कहता है रजिस्टर्ड बर्थ्स एंड डेथ्स के बारे में, दैट कुड बी शेयर्ड विद अदर अथॉरिटीज ऑल्सो इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्स इट। तो मतलब अगर बाकी की अथॉरिटीज से आपको ऑनलाइन फॉर्मेट में डेटा शेयर करना हो, तो दैट शुड बी इजीली एक्सेसिबल बाय द अथॉरिटीज एंड रेगुलर मेंटेनिंग ऑफ द सेम। These authorities may use this information to prepare or to maintain the database that is related to the population, electoral rolls, ration cards, driving license, passports, property registration, any other database at the national level. तो इस तरीके के जितने भी national cards issue होने होते हैं, यहाँ पर ये database बहुत ज़्यादा crucial और helpful रहेगा, that should be maintained regularly. So in the first, registration of these things proposes that the certificates should be issued. तो जितने भी birth and death certificates हैं वो issue करने चाहिए in the date and the place of the person, जो भी कहीं पे born हुआ है या after the act वहां पर death हुई है। तो ये कहां पे admissible होगा? ऑथर ने कहा कि this is applicable in the various purposes. कहां पे ये useful होगा? तो these are the areas जहां पर ये डेटा एक्चुअली विल प्रूव टू बी क्रूशियल। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के एडमिशन में, डीएल के लिए अप्लाई करने में, वोटर लिस्ट इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज और द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट
स्टेट गवर्नमेंट और इवन द लोकल बॉडी ऑफ द पब्लिक सेक्टर। तो किसी भी अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल पर्पस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां पे इट शुड बी हेल्पफुल। पासपोर्ट के इशुएंस में, आपके आधार नंबर के इशुएंस में, तो इट शुड बी हेल्पफुल टू ऑल ऑफ द पीपल। अदर देन दैट, अगर गवर्नमेंट के किसी भी पर्पस के लिए, किसी भी गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, दिस डेटा, द बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट डेटा शुड बी हेल्पफुल टू ईच एंड एवरीवन। इस बिल के साथ एक रिक्वायरमेंट है जो ऑथर ने बताई है, दैट इज द मेडिकल institution to provide a death certificate to the registrar and a copy to the nearest relative। तो यहां पर बिल के हिसाब से जिस भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन में किसी भी पर्सन की अगर डेथ हुई है तो वहां पर इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है, साथ ही साथ कॉपी प्रोवाइड करनी है नियरेस्ट रिलेटिव को। इट ऑल्सो मैंडेट्स द कलेक्शन ऑफ आधार नंबर्स, की आधार को यहाँ पे कलेक्ट करना है फ्रॉम द पेरेंट्स एंड इन्फॉर्मेंट्स whenever it's available in the birth certificate cases। Understanding the questions now, which of the following are the objects? तो यहाँ पे ऑथर पूछने वाला है आपसे कि एक्चुअली पर्पस क्या है ऑफ द अमेंडमेंट बिल। Creation of the national and state level database, yes, that was explicitly mentioned by the author। It will help the other databases to improve, yes, क्योंकि उन्होंने बताया कि इससे सेंट्रल और स्टेट लेवल पर किस लेवल की ट्रांसपेरेंसी रहेगी और इजी एक्सेसिबल टू द डेटा रहेगा। Improving the transparency along with the improving delivery, तो yes, टाइमली डिलीवरी यहाँ पे अवेलेबल होगी, सोशल बेनिफिट्स होंगे, अगेन was explicitly mentioned by that D, all of the above is the correct answer choice। UIDMAI, that's a state of the art profile safe keeping the databases, जिनका काम है सारे डेटाबेसेस को सेफ साइट पे रखना। उन्होंने लॉन्च किया, उनको लॉन्च किया एक स्टेट गवर्नमेंट ने इन पंजाब, जिनका काम है सारे डेटाबेस, जो सारे डेटा को सेफली कीप करना इन द ऑनलाइन फॉर्मेट। इन अथॉरिटीज को इन ऑर्डर टू इंप्रूव देयर डेटाबेस, इनको बोला गया बाय द सेंटर, आज द सेंटर टू अलाउ इट टू द ग्रांट एक्सेस एंड लिंक विद द नेशनल बर्थ एंड डेथ डेटाबेस। तो पंजाब के स्टेट डेटाबेस ने बोला दैट वी विल बी नीडिंग द सेंटर डेटाबेस ऑल्सो टू हैव द इंप्रूव फंक्शनिंग। A swift movement of the functioning is necessary. By that, we will be needing the access to the center database. Should it be permissible under the Act? तो क्या एक्ट के हिसाब से इसको परमिट करना चाहिए? Yes, but only if the centers approve it, क्योंकि ऐसा ऑथर ने कुछ भी नहीं बोला कि सेंटर का अप्रूवल चाहिए, डिसअप्रूवल चाहिए, that will eliminate it। नहीं भी क्लियरली नहीं बोल सकते क्योंकि सर्विसेज कैन नॉट बी लिंक्ड टुगेदर बाय दिस फॉर्मेट। हमको नहीं पता कि सॉफ्टवेयर के थ्रू लिंकेज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, that will make B eliminated। And C, plain yes without legal reasoning has to be eliminated, that will make none of the above the correct answer choice। Which of the following was not permitted or stated in the RBD Act? जो पुरानी एक्ट थी रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स, उसमें से कौन सा पॉइंट यहां पर नहीं स्टेटेड था? दैट मीन्स यू हैव टू फिगर आउट द फॉल्स ऑप्शन चॉइसेस। क्रिएटिंग टू हेल्प द अपडेट द करंट डेटाबेस, ऑब्वियसली जब वो डेटा एक्चुअली एक्यूमुलेट कर रहे थे तो करंट डेटाबेस को तो ऑब्वियसली अपडेट करना चाह रहे होंगे, दैट विल मेक सी द करेक्ट ऑप्शन चॉइस। बी ने कहा मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना था, वो तो पहले भी करते थे, अभी भी करेंगे। सी ने कहा द यूज ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स एज अ प्रूफ ऑफ डेथ, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन बाय द ऑथर, दैट्स व्हाई ये आरबीडी एक्ट के हिसाब से इनकरेक्ट ऑप्शन चॉइस होगा एंड देयरफॉर आर करेक्ट ऑप्शन कैन नॉट बी इन्फर्ड अगेन विल बी द इनकरेक्ट वन। आरबीडी एक्ट 2023 में जहां बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स में बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज एडमिशन, कहां यूज होगा? एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब कॉलेजेस एंड स्कूल्स में अगर आपको डीएल के लिए इशुएंस करनी है तब यूज होगा। व्हाट शैल बी द रिजल्ट इफ द बिल कम्स इनटू द कॉन्फ्लिक्ट विद एनी अदर एक्ट? तो अगर बिल इंट्रोड्यूस होता है और कॉन्फ्लिक्ट करता है किसी और एक्ट के साथ तो क्या रिजल्ट या क्या उसके पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? दैट इज द मेन कंटेंशन एंड क्वेश्चन ऑफ द ऑथर। ये बिल, दिस बिल हैज द मोर अथॉरिटी दैन द अदर बिल्स, यस, बिकॉज अगेन अगर वो कॉन्ट्रावीनिंग प्रोविजंस होंगे,
अगर वो बिल के हिसाब से कॉन्ट्राडिक्टिंग ऑप्शंस होंगे तो डेफिनेटली द बिल विल सुपरसीड। दैट्स व्हाई 2023 में रीसेंट लॉन्चिंग है और कंटेम्प्रेरी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है। दैट विल मेक ए द करेक्ट ऑप्शन। अदर लॉन्ग एस्टैब्लिश एक्ट वुड हैव अ हायर अथॉरिटी, मतलब ये सीधा सीधा बोल रहा है कि आउटडेटेड डेटा है, जो पुराना एक्ट है उसके पास ज्यादा अथॉरिटी रहेगी। दैट विल एलिमिनेट दिस वन। सी ने कहा अप टू द डिसीजन ऑफ जुडिशरी, तो जुडिशरी का डिस्क्रिशन है कि नहीं ये ऑथर ने नहीं बताया, एंड देयरफॉर नन ऑफ द अबव इज द इनकरेक्ट वन। अज्यूम अगर हम ये करें कि आरबीडी एक्ट है जो वो 2023 में पास कर दिया है, पार्लियामेंट ने इस बिल को पास कर दिया है। रामन ने एक जॉब के लिए अप्लाई किया है सनातन एंड मंथन प्राइवेट लिमिटेड लॉ ऑफिस में। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उसका बर्थ सर्टिफिकेट जो उसने अप्लाई किया था। तो क्या यहां पर कैन द सेम बी कंटेंटेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ? रामन यहां पे क्या कोर्ट में कोई केस फाइल कर सकता है? तो नो, बिकॉज द यूज ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट फॉर द जॉब इज नॉट प्रोवाइडेड इन द एक्ट। यहां पर आप ये देख रहे हो कि प्राइवेट जॉब का मेंशन है, लेकिन ऑथर ने मेंशन किया था रिगार्डिंग द ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड, तो जितने भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं वहां बर्थ सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन ऑथर ने मेंशन किया। यहां पर जो है वो एक प्राइवेट जॉब है। दैट विल मेक बी द करेक्ट ऑप्शन चॉइस एंड येसेस विल बी द एलिमिनेटर्स। एंड डी में क्योंकि लीगल रीजनिंग गिवन नहीं है तो प्लेन नो से अच्छा है कि नो विद द लीगल रीजनिंग शुड बी द बेटर ऑप्शन एंड डी विल बी द एलिमिनेटर। अंडरस्टैंडिंग अनदर पैसेज, सुप्रीम कोर्ट ने वेंसडे को एक हैंडबुक रिलीज की जिसमें उन्होंने कहा कि जजेस को यहां पर गाइड किया जाएगा कि किस तरीके से जेंडर न्यूट्रल टर्म्स यूज करनी है, जहां पर भी किसी भी विमेन को आप ऑब्जेक्टिफाई ना करें, ऐसी कोई टर्म्स एंड वोकैबुलरी को यूज ना करें जो किसी भी पर्टिकुलर जेंडर को ऑब्जेक्टिफाई करें या ऑफेंड कर सकें। तो यहां पर कुछ जेंडर न्यूट्रल टर्म्स का यूसेज बताया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो जजेस अब से क्या यूज करेंगे? अनमैरिड वुमेन, और यहां पर अगर वो स्पिंस्टर टर्म, मिस्ट्रेस टर्म्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा विद द अनमैरिड वुमेन। सिमिलरली अ वुमन विद whom a man had a romantic or a sexual relation outside of the marriage, तो इस केस में द वर्ड prostitute को रिप्लेस किया जाएगा विद द वर्ड सेक्स वर्कर। दैट्स गोइंग टू बी अ मोर जेंडर न्यूट्रल टर्म और अ जेंडर यूफेमिज्म दैट्स गोइंग टू बी फॉलोड। हैंडबुक ने ये भी जजेस को एडेयर किया कि स्ट्रीट सेक्सुअल हरासमेंट में इस केस में यहां पर ये टर्म्स को ना यूज करके ईफ टीजिंग टर्म इज अ बेटर टर्म दैट शुड बी यूज। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने ये बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है जजेस के लिए कि दे शुड नॉट रिलाई ऑन द जेंडर स्टीरियोटाइप्स। जो नोशंस चलते आ रहे हैं उनको सोसाइटी के हिसाब से डिसीजन मेकिंग करना है और एक्टिवली चैलेंज करना है जितने भी स्टीरियोटाइप्स और फॉल्स टर्म्स यूज किए जाते हैं। तो इसके लिए डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करना और एक्सक्लूजन को एलिमिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक को प्रिपेयर किया गया है बाय जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य ऑफ कैलकाटा हाई कोर्ट एंड प्रतिभा सिंह ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट एंड ऑल्सो प्रोफेसर झूमा सिंह। इन्होंने डिस्कस किया कि नए इश्यूज हैं जहां पे जेंडर फ्लूइडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम ऐसी कुछ टर्म्स को यूज करें जो LGBTQIA कम्युनिटी को भी जेंडर न्यूट्रलाइज करें। अंडर द सब चैप्टर ऑफ अंडरस्टैंडिंग द जेंडर स्टीरियोटाइप्स, हैंडबुक ने यह भी एक्सप्लेन किया कि सेक्स को माना रेफर किया जाता है एज द बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। जेंडर इज एक्चुअली ऑन द कॉन्ट्ररी रेफर्स टू द सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स एंड बिहेवियर्स कि इंसान के प्रेफरेंसेस एंड नीड्स क्या हैं, दैट कैन गो द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द सेक्स एज वेल। दैट्स लाइक द बिहेवियर्स, एक्सप्रेशन, आइडेंटिटीज, रोल्स and all of the identities that the girl, women, boys, men, gender diversify in the individuals. So gender identity should not be limited only to the binary term, that is like only girl and the boys. It has to be the gender neutral including the LGBTQ community. Further, ये जो जेंडर है एक सोशल कंस्ट्रक्ट है और ये इंक्लूड करता है ऐसे नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स एंड ऐसे रोल्स जो कि एक जेंडर को आइडेंटिफाई करता है पर्टिकुलर टर्म से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कंटेंट किया है कि कैसे स्टीरियोटाइप्स एक्चुअली अनविटिंगली हमारी सोसाइटी में सीप इन कर चुके हैं, और न्यू ग्लॉसरी ने प्रोवाइड किया कि कैसे यूफेमिज्म को फॉलो करना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट है कि हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स को शुड बी ऑलवेज कीप अवे फ्रॉम द सोसाइटी एंड एज पर द हैंडबुक। सेक्सुअल असॉल्ट्स के केसेस में भी स्टीरियोटाइप परसेप्शंस विल बी फॉलोड। फॉर एग्जांपल, इन द कास्ट सेक्सुअल असॉल्ट डायनामिक्स, डोमिनेंट कास्ट मेन नहीं चाहते हैं एक्चुअली टू एंगेज इन द सेक्सुअल रिलेशनशिप विद द विमेन फ्रॉम ओप्रेस्ड
caste. Therefore, any allegations made for the sexual assault or even the rape by an oppressed caste woman against the dominant caste man is false. तो जनरली ये सोसाइटी का मान लिया जाता है कि जब भी एक oppressed caste citizen जो कि एक विमेन है, अगर वो केस फाइल करती है अगेंस्ट द अपर कास्ट मैन, तो मान लिया जाता है, एक पर्सपेक्टिव होता है कि ये फॉल्स केस ही होगा. बट इन रियलिटी द कॉन्ट्रोडिक्शन इज कि गाइड ये बोलती है कि रेप एंड सेक्सुअल वायलेंस एक्चुअली लॉन्ग बीन इन द टूल ऑफ द सोशल कंट्रोल. और यहाँ पर डोमिनेंट कास्ट मेन पे भी हिस्टोरिकली देखा गया है कि ऐसी चीजें हुई हैं, तो वहां पर उनको जेंडर न्यूट्रल टर्म से समझना चाहिए कि एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है. जस्टिस चंद्रचूड़ ने गाइड किया एंड एडिट द 2-year लॉन्ग वर्क इन्वॉल्विंग द वाइडर कंसल्टेशन. साथ के साथ any other people like experts and stakeholders helped him. The handbook contained the glossary of the gender unjust terms. तो जहां पर भी जितने भी gender unjust terms हैं उनको replace किया गया with the softer terms that has to be used by the court. Understanding the question now. सुप्रीम कोर्ट की हैंडबुक जो है जेंडर जस्ट लैंग्वेज एम्फसाइज करती है कि अनमैरिड वुमेन को स्पिंस्टर should not be the term that should be used. Unmarried woman term should be used. Similarly, woman with whom a man has had a romantic or a sexual relationship outside of a marriage in place of a mistress, we should be using the term unmarried woman. How does this language is shifting the contribute to the court's goal of promoting the gender sensitivity? तो किस तरीके से ये कोर्ट के जेंडर सेंसिटिविटी रोल को और ज्यादा प्रमोट करना चाह रहा है? क्या ये रीइंफोर्स करना चाह रहा है ट्रेडिशनल स्टीरियोटाइप्स? नहीं, ये तो ब्रेकिंग करना चाह रहा है ओल्ड शैटर्स को. बी ने कहा इट इज अलाइनिंग विद द कोर्ट्स ऑब्जेक्टिव टू चैलेंज and dispelling the harmful stereotypes that are being embarked in our society from the age-old scenario. B, correct option. C ने कहा ये perpetuate करना चाह रहा है. Perpetuate का मतलब है और ज्यादा accelerate करना चाह रहा है discrimination को. That's why eliminated. D ने कहा ये confusion create करना चाह रहा है. Confusion passage ने ऐसा कुछ भी adhere नहीं करा है. That's why eliminated. अगर हैंडबुक को फॉलो किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ऐसे कॉशन लगाए हैं जजेस के अगेंस्ट टू रिलाई ऑन द स्टीरियोटाइप्स इन देयर डिसीजन मेकिंग? तो इस तरीके का पॉइंटर क्या ऑब्जेक्टिव रहा होगा सुप्रीम कोर्ट का बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग सच ऑब्जेक्टिव्स? तो स्टीरियोटाइप्स एक ऑब्जेक्टिव और इम्पार्शियल एप्लीकेशन को की तरफ जाते हैं. इम्पार्शियल तो नहीं जाते, बायस की तरफ जाते हैं. बी ने कहा स्टीरियोटाइप्स कंट्रीब्यूट करते हैं डिस्टॉर्शन की तरफ. यस, एप्लीकेशन ऑफ द लॉ डिस्टॉर्ट हो जाता है. दैट विल बी एप्लीकेबल एंड बी द करेक्ट ऑप्शन. सी ने कहा स्टीरियोटाइप्स प्रमोट करते हैं डाइवर्सिटी. स्टीरियोटाइप्स डाइवर्सिटी प्रमोट करते हैं. इट्स एन ऑक्सीमोरॉन. दैट्स व्हाई एलिमिनेटेड. डी ने कहा स्टीरियोटाइप्स हैव नो इंपैक्ट ऑन लीगल सिस्टम. अगेन एलिमिनेटेड. अंडरस्टैंडिंग अनदर क्वेश्चन. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, अगर सेक्सुअल असॉल्ट को देखा जाए तो हैंडबुक ने हाईलाइट किया कि स्टीरियोटाइप रिगार्ड करते हैं कास्ट सेक्सुअल असॉल्ट डायनामिक्स ऑल्सो. तो गाइड के हिसाब से अबाउट व्हाट डू यू थिंक, गाइड ने क्या एक्चुअली डिटेल प्रोवाइड की होगी रिगार्डिंग दिस स्टीरियोटाइप? डोमिनेंट कास्ट मेन आर मोर लाइकली टू बी द विक्टिम्स. यहां पर ऑथर ने उल्टा बताया था. ऑथर ने कहा था दे आर मोर लाइकली टू बी द कल्प्रिट्स. दैट्स व्हाई एलिमिनेटेड. बी ने कहा allegations of sexual assault by oppressed caste women against dominant caste are generally false. Author ने कहा they are true. Sexual violence has historically been the tool to reinforce and maintain the caste hierarchies. That was clearly explicitly mentioned and will make C the correct option. Caste dynamics have no bearing. तो मतलब कोई relation ही नहीं है इसका sexual assault cases से. That's why eliminated. सुप्रीम कोर्ट ने हैंडबुक को एड्रेस किया. हाउ डज इट एड्रेस द हैंडबुक इन द केसेस ऑफ जेंडर फ्लूइडिटी? किस तरीके से LGBTQ के लिए ये जेंडर हैंडबुक हेल्पफुल रहनी चाहिए एंड व्हाट टर्म्स इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए इन द इंक्लूसिविटी ऑफ दिस बुक? तो यहाँ पे ऑथर कहना चाहता है कि क्या हैंडबुक डिसमिस करेगी जेंडर फ्लूइडिटी एज इररेलेवेंट? नो, इट्स रेलेवेंट एक्चुअली. दैट्स व्हाई ए एलिमिनेटेड. बी ने कहा इट विल एडवोकेट द यूज ऑफ ट्रेडिशनल जेंडर टर्मिनोलॉजी. नहीं, इन्होंने कहा कि नहीं, ट्रेडिशनल टर्मिनोलॉजी से हटना है, हमको न्यू जेंडर टर्म्स यूज करनी है. देयरफॉर एलिमिनेटेड.
सी ने कहा हैंडबुक इनकॉर्पोरेट करेगी, चैंपियन करेगी बाय दी अगेन जेंडर फ्लूइडिटी के हिसाब से LGBTQ कम्युनिटी इज अ राइट कॉलोकेशन एंड विल रिकॉग्नाइज द जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। डी ने कहा इट विल सजेस्ट करेगी, सजेशंस नहीं है, दैट जेंडर फ्लूइडिटी शुड नॉट बी एक्नॉलेज्ड। तो नॉट बी एक्नॉलेज्ड अगेन अगर हम प्ले पॉजिटिव नेगेटिव करें, दैट्स व्हाई डी इज अ नेगेटिव आंसर, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के हिसाब से व्हाट इज द प्राइमरी इंटेंशन, मेजर इंटेंशन क्या रही होगी बिहाइंड द हैंडबुक्स ग्लॉसरी ऑफ द जेंडर अनजस्ट टर्म्स एंड ऑल्टरनेटिव सजेशन। तो मतलब अल्टीमेटली पर्पस क्या रहा होगा इस हैंडबुक को इंट्रोड्यूस करने के पीछे? क्रिटिसाइज करना और डाउट क्रिएट करना पास्ट जजमेंट्स पे? नहीं। कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज ऑफ फ्लूइडिटी के हिसाब से मीट करना वाज अ मेजर गोल। रीइंफोर्सिंग द हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स इन लीगल लैंग्वेज, अगेन इनकरेक्ट ऑप्शन। सी ने कहा टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ स्टीरियोटाइप्स आर अनविटिंगली एम्प्लॉयड इन आवर सोसाइटीज मेजर थ्रेड्स and also promoting the gender sensitivity according to the terms, that will make C the correct option choice. डी ने कहा ऐसा सब कुछ एलिमिनेट करना जो ट्रेडिशनल लीगल टर्मिनोलॉजी में था, यस, बट इन द फेवर ऑफ द मॉडर्न लैंग्वेज। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये टोटली सिर्फ और सिर्फ चेंजेस के पीछे लिंग्विस्टिक पर्पस को डिस्कस कर रहा है, लेकिन इसके अलावा एक मेजर सोसाइटल पर्पस भी रिक्वायर्ड था, दैट्स व्हाई डी शुड बी एलिमिनेटेड। Moving ahead with another passage that is about the standard operating procedure released by the center, जिसने कहा कि कोर्ट को एक्सरसाइज करना चाहिए कि वो ऐसे कभी भी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं एग्जीक्यूटिव में या लेजिस्लेटिव में, उनको समनिंग के लिए बुला नहीं सकते, क्योंकि उनका अपना खुद का भी काम होता है, खुद के भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लायबिलिटीज होते हैं। तो जब भी अगर उनको ऑफिस के आवर्स में बुलाया जाए तो कभी कभार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करा लेनी चाहिए समनिंग को लेके, एंड सो ऑन। दैट वाज द मेजर पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑथर। तो एसओपी ने ये स्टेट किया कि यहाँ पे गवर्नमेंट, द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ने स्टेट किया कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को रूटीनली समन नहीं करना चाहिए, इमीडिएटली आपको नहीं बुला सकते उनको कोर्ट में। एक्सेप्शनल केसेस में अलाउड है जहां पे कोर्ट रिजॉर्ट कर सकती है समनिंग, वहां पर एसओपी ये रेकमेंड करता है कि इवन वहां पे एक्सेप्शनल केसेस में भी एक आप ड्यू नोटिस प्रोवाइड करोगे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, उसके बाद ही आप कोर्ट में उनकी समनिंग कर सकते हो। That should be given to the officers in the personal appearance. SOP suggest करता है कि court should allow an opportunity to the officer to be given the video conferencing options as well. इस केस में कोर्ट ने कमिटीज को कॉन्स्टिट्यूट किया और एसओपी ने ये फाइनली डिसीजन लिया है दैट इट शुड प्रिस्क्राइब द ब्रॉड डोमेन ऑफ द मेंबर्स। सेंटर ने प्रपोज किया कि अगर कोर्ट अपॉइंट करता है कोई कमिटीज तो आइडेंटिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स शुड बी लेफ्ट आउट टू द एग्जीक्यूटिव ओनली। तो अगर इस केस में मैटर्स को किसी कमिटी के थ्रू भी सॉल्व किया जा सकता है विदाउट कॉलिंग द ऑफिशियल्स इन द कोर्ट, तो उस कमिटी का भी जो इलेक्शन है वो एग्जीक्यूटिव कमिटी के हाथ में दे देना चाहिए। दे शुड एक्चुअली डिसाइड द मेंबर्स ऑफ द कमिटी। The SOP advised that in the writs or even the PILs, the court should limit the hearings. So in the cases of writs and PILs, the government calling should be limited to the VC. सेंटर ने ये भी सॉर्ट किया कि क्लैरिफाई करना है कि कोर्ट रेफर करे मैटर को पब्लिक पॉलिसी में, और अगर एग्जीक्यूटिव चाहे तो वो भी नेसेसरी एक्शन लेके मैटर को कर्टेल कर सकती है। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसे मैटर्स होते हैं तो वहां पे सेंटर ने प्रपोज किया कि जज को यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मैटर्स को हियर नहीं करना चाहिए विदाउट पासिंग एनी ऑफ द ऑर्डर। एसओपी ने एक और प्रपोज प्लान स्टेट किया कि एक एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है ऑफ द नेचुरल जस्टिस, दैट इज द एडमिन लॉ प्रिंसिपल, कि किसी भी इंसान को जब तक मैटर में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है या कुछ भी केस में अगर वो बायस हो सकता है तो उस केस में उसको मैटर को नहीं सुलझाना चाहिए। तो यहां पर इन द इशू ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ एसओपी, तो इन्होंने सीधा सीधा बोला कि अगर किसी जज का कंटेम्प्ट होता है तो पर्टिकुलर जज शुड नॉट बी द पार्टी इन द जजेस पैनल ऑफ दोस मैटर, शुड नॉट इनिशिएट द कंटेम्प्ट proceedings against the government lawyers for the statements made in the court. Understanding the questions, सेंटर के एसओपी मॉडल ने सजेस्ट किया दैट गवर्नमेंट के ऑफिशियल को रूटीनली नहीं बुलाना चाहिए कोर्ट में समनिंग के लिए। कौन से सर्कमस्टांसेस में एज पर द एसओपी
कि कोर्ट समन एक्चुअली कर सकता है, मतलब कौन से वाले सिनेरियोज में, चलो ठीक है रेगुलर में समन नहीं कर सकते, बट कौन से वाले में एक्चुअली समन कर सकता है और कौन से प्रिकॉशंस एसओपी मॉडल को लेने चाहिए इन सच ऑफ द केसेस। एज पर द ऑथर, कोर्ट्स कैन समन द गवर्नमेंट ऑफिसर इन एनी केस, नहीं ऑथर ने एक्सेप्शनल केस बोला था। कोर्ट्स कैन समन गवर्नमेंट ऑफिसर्स ओनली इन एक्सेप्शनल केस, यस। एसओपी रिकमेंड ये करता है कि उससे पहले नोटिस भी देना चाहिए और वीसी को भी ऑप्शन देना चाहिए, बी द करेक्ट ऑप्शन। सी ने कहा कोर्ट कैन रूटीनली समन, अगेन रूटीनली समन तो नहीं कर सकते, एक्सेप्शनल बोला है। एंड डी ने कहा कोर्ट कैन समन द ऑफिसर्स इन कंटेम्प्ट केसेस, कंटेम्प्ट केसेस में भी एक्सेप्शन क्राइटेरिया प्रोवाइड किया गया है, दैट्स व्हाई एलिमिनेटेड। एसओपी के हिसाब से क्या रोल प्ले करना है सेंटर को जब वो प्रपोज करते हैं कि एग्जीक्यूटिव को आइडेंटिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स इन द कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी। तो जो कोर्ट की अपॉइंटेड कमिटी है जो एग्जीक्यूटिव के मैटर्स को एग्जीक्यूटिव लेवल पर सुलझा सकती है, उस केसेस में यहां पे सेंटर का क्या प्रपोज प्लान था रिगार्डिंग द कमिटी दैट वाज देयर। एग्जीक्यूटिव शुड हैव नो रोल, क्लियरली एन एलिमिनेटर, क्योंकि ऑथर ने कहा कि एग्जीक्यूटिव को तो कमिटी बनानी चाहिए और एग्जीक्यूटिव को मैटर को सुलझा लेना चाहिए रादर देन द ऑफिशियल्स गोइंग टू द कोर्ट। सेंटर ने सजेस्ट किया एग्जीक्यूटिव शुड आइडेंटिफाई एंड अपॉइंट अ कमिटी, यस, कमिटी मेंबर्स विदाउट एनी इनपुट फ्रॉम द कोर्ट्स, देयरफॉर कोर्ट का कोई इनपुट ना रहे तो यहां पर ये एलिमिनेटर में चला जाएगा क्योंकि कोर्ट का अप्रूवल भी रिक्वायर्ड है। सेंटर एक कमिटी को प्रपोज करे और साथ साथ एक्सक्लूड करे एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द प्रोसेस, दैट विल मेक अगेन बी द बेटर करेक्ट ऑप्शन एंड सी द एलिमिनेटर, क्योंकि सी ने ये बात बोली है कि यस कमिटी को सिर्फ प्रिस्क्राइब करना है और कमिटी का एग्जीक्यूटिव रोल को प्रोसेस से बाहर निकाल देना है। अगर कमिटी खुद एग्जीक्यूटिव निकाल रही है, बना रही है, तो प्रोसेस में से वो खुद कैसे बाहर हो सकती है, देयरफॉर एलिमिनेशन। डी ने कहा एसओपी शुड नॉट एड्रेस द अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी, मतलब कमिटी को फॉर्म ही नहीं करना चाहिए, टोटली अ फॉल्स स्टेटमेंट एज पर द पैसेज। जहां पर रिट्स और पीआईएल्स के केस होते हैं वहां पर एसओपी ने एडवाइस किया है कि कोर्ट को लिमिट कर देनी चाहिए अपनी हियरिंग्स और डिसीजंस इनटू व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द मैटर, तो किस एस्पेक्ट तक पीआईएल्स के केस में लिमिट कर देनी चाहिए हियरिंग्स को। तो यहां पर ऑथर बोलना चाहते हैं क्या कोर्ट शुड लिमिट देयर कंसिडरेशन टू प्रोसीडरल मैटर्स ओनली, तो सिर्फ प्रोसीडरल तक रिट्स और पीआईएल्स को रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, ऐसा ऑथर ने प्रोसीडरल मैटर्स का कुछ मेंशन नहीं किया। बी ने कहा कोर्ट शुड फोकस ऑन पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, तो पॉलिटिकल इंप्लीमेंटेशंस क्या रहेंगी कोर्ट की इन सच ऑफ द रिट्स एंड पीआईएल मैटर, पॉलिटिकल इंपैक्ट क्योंकि ऑथर ने डिस्कस नहीं किया, देयरफॉर बी इज द इनकरेक्ट वन। कोर्ट शुड ओनली कंसिडर द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द मैटर, यस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर क्या ठीक है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द मैटर बिल्कुल एप्लीकेबल है, उस हिसाब से कोर्ट को एडहेयर करना चाहिए कमिटी को या एसओपी को, दैट विल मेक सी द करेक्ट ऑप्शन। डी ने कहा कोर्ट शुड डेल्व इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस, तो सिर्फ मेरिट्स पे फोकस करना चाहिए, रियल लाइफ पे फोकस एंड रियल केसेस पे फोकस नहीं करना चाहिए, मेरिट्स पे फोकस करना चाहिए, देयरफॉर एलिमिनेटेड। एसओपी ने रेकमेंड किया कि जज को कोई भी मैटर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड हो उसमें जो पर्सनल जज है उसको वो मैटर नहीं सुनना चाहिए। व्हाट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यहां पर एडमिन लॉ का एसओपी साइट करना चाहता है, तो यहां पर आपको चाहिए एनी ऑफ द ऑप्शन दैट इज द सपोर्टर और द स्ट्रेंथनर ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। Principle of judicial autonomy. Judicial autonomy is clearly saying कि judicial supremacy has to be there, therefore eliminator. Principle of executive authority सिर्फ executive को promote करना चाहता है। C ने कहा non interference of legal matters, तो interference तो clearly applicable है। Principle that no person can judge in the case that have an interest, yes, that's a clear implication of non-bias कि any of the person who is the judge in his own matter, नेमो कॉसा जज वाला जो एक आपका मैक्सिम है, नेमो कॉसा जज, नेमो कॉसा सुआ जोडिस
वो यहां पर आपका क्लियरली एप्लीकेबल है, जो ये कहता है कि नो पर्सन कैन बी द जज, जहां पे उसका खुद का पर्सनल मैटर या खुद का बायस कहीं ना कहीं इनलेटली रिलेटेड हो. दैट विल मेक डी द करेक्ट ऑप्शन चॉइस. एसओपी के हिसाब से कंटेम्प्ट केसेस में क्या रिकमेंडेशन है जो यहां पर एसओपी ने दी है गवर्नमेंट लॉयर्स को और उनके स्टेटमेंट्स को जो कोर्ट में दी जाती हैं. तो इस केस में ऑथर ये बोलना चाहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्ट शुड इनिशिएट द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स. इनिशिएट कर लेनी चाहिए? नहीं, क्योंकि यहां पे एक्सेप्शनल सिनेरियो गिवन है, एलिमिनेटर. एसओपी डज नॉट प्रोवाइड द रिकमेंडेशन ऑन दिस टॉपिक. रिकमेंडेशन क्लियरली दी है. सी ने कहा कोर्ट शुड इनिशिएट द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट गवर्नमेंट लॉयर्स ओनली इफ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तब तो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने का कोई मैटर बनता ही नहीं है. कोर्ट शुड रिफ्रेन, यस रिफ्रेन करना है क्योंकि पर्टिकुलर एसओपी सिनेरियोस के हिसाब से चलना है. रिफ्रेन करना है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को अगेंस्ट द गवर्नमेंट लॉयर्स फॉर द स्टेटमेंट्स दैट आर मेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ. तो दे शुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सच प्रोसीजर. सो विद दिस ऑलवेज अप्लाई द स्ट्रैटेजी ऑफ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. पैसेज को समझना बहुत जरूरी है एंड लीगल न्यूज को, करंटली जितने भी लीगल न्यूज आपके पास आते हैं वो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लैट और एलिट अक्सर आपके साथ ऐसा करता है कि कोई भी करंट लीगल न्यूज को आपको एज अ पैसेज फॉर्मेट दे देता है, लेकिन पैसेज को समझना, उसकी निटिग्रिटी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि उसके हिसाब से क्वेश्चंस होते हैं. तो यहां पर आपने क्लियरली लॉ को अप्लाई नहीं भी करना हो, आपने डेटा को क्लियरली अप्लाई करना होता है एंड दिस स्ट्रैटेजी विल ऑलवेज हेल्प यू. मिलते हैं आपसे अगले सेशन में. टेक केयर एवरीवन, बाय बाय ऑल.